This conference will now be recorded. The next topic of hydrocarbon, that is the benzene and its derivative. फर्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर हमें बताया वो कैक्यूले नाम के साइंटिस्ट ने बताया, जो कि हम रेजोनेंस में देखे भी हैं और भी और देखने वाले हैं. Benzene, everything important, is a cyclic, planar, hexagonal molecule having one pi electronic cloud above and another below the plane. जैसे आपकी कॉपी है ना, तो वैसा एक साइक्लिक हेक्सागोनल C6H6 बैठा हुआ है. ये ब्लैक वाला, दैट इज ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठा हुआ है या आपके टेबल पे बैठा हुआ है. इसके ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसके नीचे एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है. और यू कैन सिंपली इमेजिन अ बर्गर. तो ऊपर और नीचे ब्रेड है, उसके बीच में आपने कोई टिक्की जैसी चीज रखी हुई है. And it has resonance, so electron can move on the whole of the molecule. Its structure was given by Kekule, a German scientist, in 1865. And strangely, जब इन्होंने इनका स्ट्रक्चर दिया तब कोई एक्सरे जैसी चीज भी नहीं थी. ये प्रपोज करते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है या ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है. एक्चुअल में ये दोनों ही नहीं है. तो इन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से बोल दिया. आप ऐसा बना सकते हैं या आप बीच में गोला भी बना सकते हैं, जो कि इंडिकेट करता है रेजोनेंस. यू रिमेम्बर, जब भी रेजोनेंस आती है स्टेबिलिटी आती है. लेमन लैंग्वेज में इसको ऐसे या ऐसे लिखा जा सकता है. C6H6 लिखा जा सकता है, C6H5H लिखा जा सकता है और PHH लिखा जा सकता है. किसी भी तरीके से हम बेंजीन को लिख सकते हैं, बट स्कूल में आपने ये वाली एब्रीवेशन नहीं नोट करनी है. आपने बाकी में से कोई भी लिख सकते हो. एंड प्लीज, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्लास नोट्स में हम बेंजीन को PHH लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने नहीं लिखना है. Most of benzene-like compound possess pleasant odor. Exactly pleasant बोलना तो नहीं ठीक होगा, but एक characteristic smell है. Therefore, these are known as aromatic compounds. They may be benzenoid, जिनमें benzene ring होगी, and non-benzenoid. But as a matter of fact, हम benzenoid के ऊपर ध्यान देने वाले हैं. You have done many number of times benzene. You remember toluene nomenclature. It is 2-phenyl propane, or known as isopropyl benzene. This is also known as cumene. अगर एक से ज्यादा दो मिथाइल ग्रुप हो तो you can call it xylene. This can be ortho, this can be meta, this can be para. And if there are 3 methyl on the benzene ring, we call it mesitylene. I beg your pardon. Benzene, toluene, the xylene and mesitylene भूलने वाली चीजें ही नहीं है. Now we can have naphthalene. You can safely draw it like this, no problem at all. This is diphenyl or biphenyl. This is one carbon, methane, triphenyl methane. दो बेंजीन रिंग फ्यूज हुई naphthalene, और अगर 3 फ्यूज हुई तो you call it anthracene. Even we might have something like this also. तो ऐसा भी हो सकते हैं. But remember, anthracene सिर्फ इसी को बोला जाता है. और अगर आपके पास स्ट्रेट चेन के ऊपर एक से ज्यादा रिंग लगे हों तो that is going to be called as derivative of alkane. This compound will be known as diphenyl methane. So I wish कि आप इनको देखते रहें. पहले काफी बार देखा हुआ है, बट फिर भी आप इनको पढ़ते रहें. The benzene, arenes भी बोला जाएगा, are expected to be unsaturated and highly reactive in nature. However, they are stable. Whether they are not stable, they are extremely stable.
सो एक एडवाइस पहले ही कर देते हैं, जहां पे भी आप ये रिंग देखेंगे, ना तो आपने इसको टच करना है, ना आपने इसको स्मेल करना है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। दिस इज वेरी वेरी स्टेबल। अगर ये एक बार बॉडी में चली जाती है तो बॉडी इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता है, तो ये हमारे इस सिस्टम के अंदर ही रहती है जब तक हम जिंदा है, and that is the source of cancer. Because of unsaturated nature, benzene is expected to undergo only addition reactions like alkenes and alkyne. However, it does undergo addition reaction, but with difficulty. It mainly undergoes substitution reaction in contrast to unsaturated hydrocarbon. The point to be noted, benzene does not give addition reaction easily, it gives substitution reactions. अभी दिखाता हूँ. This is the benzene. इनमें से हम एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लेंगे, हम उसकी जगह पे हैलोजन लगा देंगे. This is going to be known as substitution reaction. और अगर मेरे पास ये बेंजीन होता, राइट, और मैं इसके ऊपर ब्रोमीन डालता इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसने एडिशन रिएक्शन तो शो करना है, बट बहुत मुश्किल से शो करने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड. इसमें हमारे पास द ब्रोमीन हैज बीन एडेड, तो दिस इज नॉट फॉर्म्ड. इट शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली. It does not show addition reaction क्योंकि उसकी रेजोनेंस है वो खत्म हो जाएगी. We have done it. You read it. केक्यूले ने इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बताया था much before this. And you people remember, जिनमें भी रेजोनेंस आती है वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं देन एक्सपेक्टेड. अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बेंजीन की अगर थ्योरेटिकल एनर्जी निकालें और जो हमारे पास बेंजीन की जो एक्चुअल एनर्जी पाई गई है, दैट इज लेसर, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी. इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड दैट गिव्स यू द इसकी एक अनरिएक्टिविटी के कारण बनता है. तो यू रिमेंबर, यू कैन कॉल इट 1 and 2, यू कैन कॉल इट 1 and 2. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप इसको जैसे मर्जी लिख सकते हैं. बेशक 1 and 2 सिंगल बॉन्ड में रखो, बेशक 1 and 2 डबल बॉन्ड में रखो, हमें कोई फर्क नहीं है. दैट इज गोइंग टू बी सेम थिंग है, क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से कहीं भी आ सकता है, तो इनमें कोई अंतर नहीं आने वाला है. सो दैट्स वन पॉइंट. बेंजीन डज नॉट अंडरगो addition reactions, but it undergoes substitution reaction. Rather लॉक किया जाए, benzene and its derivative show electrophilic substitution reactions. That's extremely important. Benzene and its derivative show electrophilic substitution reaction. इसको आप अपने आप देखेंगे, हमने आपकी थर्मोडायनेमिक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट किया हुआ है जहां पे हम आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालने सिखाते थे बेटे. सो इस डिस्कशन में मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेंजीन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. सो काइंडली गो थ्रू दैट. अभी ये सिर्फ मैं एक बैकग्राउंड मान रहा हूँ. We have already discussed this. You can see from chemical thermodynamics only. Bulwinder Singh, we remember the हक्कल रूल. एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए आपके पास 4 चीजें होनी जरूरी हैं. इट मस्ट बी साइक्लिक. साइक्लिक आप देख सकते हैं. प्लानर एक्सपेरिमेंटल है बेटे, ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल है. डी फॉर डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसमें होंगे तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला करते थे. The aromatic compound must be planar cyclic having delocalization of 4n+2 pi electron.
we can have 2, 6, 10, 14, 18 and so much pi electron systems with it. You remember benzene, तो इसमें आपके पास 2 एक डबल बॉन्ड में 3 डबल बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. इसमें each double bond 10 total pi electron है and so on. So these are few examples of aromatic compounds which are going to be extremely stable. Kindly go through that. तो ये कुछ एग्जाम्पल आ जाएंगे बेटा. So knowledge है. You remember FPT. It is oxygen, nitrogen, sulfur. ये याद करने का तरीका है. यहाँ पे मैंने G लगाया हुआ है. Where G is going to be, अगर ऑक्सीजन होगा तो उसको फ्यूरैन बोला जाएगा. If G is going to be नाइट्रोजन होगा उसको पायरोल बोला जाएगा. अगर G is equal to सल्फर होगा उसको थायोफीन बोला जाएगा. This molecule is also aromatic, that is known as pyridine. All of these are example of aromatic compound. We have done it somewhere else, but you should read it once again. Knowledge अच्छी हो सकती है, फायदा हो सकता है. So this is थोड़ी सी दोस्ती की गई बेंजीन से. Now, as we do in every family, let's move ahead. We are moving with the method of preparation for the benzene and its derivative. Remember, alkynes का last reaction था polymerization. When 3 moles of acetylene react or is passed through red hot copper or iron tubes, the benzene is formed. If you have propane and you do the same thing, pass it through red hot copper or iron tube that act as a catalyst, we get mesitylene that is going to be normally symmetrical 135 बनती है. आप लोगों से क्वेश्चन कैसे घुमाया जाएगा? आपसे वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, आपसे वो क्वेश्चन किसी और प्रकार से पूछेंगे. How can you convert, say, ethanol to benzene? The knowledge is being tested. You take sulfuric acid, you heat it. Yes, Jan, what is going to be obtained with you? Ethene. Remember, add bromine in the presence of carbon tetrachloride. क्या मिल जाता था? The bromine. याद करो, पहला स्टेप QH alcoholic. दूसरा स्टेप बच्चों सोडामाइड and you get एसिटाइलिन. अब वो आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कॉपर ट्यूब्स, जो भी गैसेस होती हैं, HT हाई टेम्परेचर, HP हाई प्रेशर, वैसे ही डाल दिया करो. एग्जैक्ट कंडीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है कि कितना प्रेशर और कितना ये. So that is going to be the way the questions are going to be asked today. Be prepared. लेवल से मिलाया जा सकता है. हाँ बोलो. सर हम सोडामाइड को सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं KOH की जगह? बिल्कुल कर सकता है बेटे. यहाँ ये लिख सकता है, यहाँ लिख सकता है सरदार जी 2 मोल सोडामाइड. और बच्चे बिल्कुल ठीक है, 110% सही है. ये कॉस्टली होगा, QH सस्ता है. और अगर आपने किसी जगह पे ये देखा तो बेटे वो गलत होगा, क्योंकि जब वो डबल बॉन्ड बन जाता था सिंह साहब तो उसमें से वो हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता था. हाँ बेटे लिख सकता था, 2 मोल सोडामाइड भी लिख सकता था. ओके सर, 100% सही होगा. Singh, do you remember I'm calling it second reaction, polymerization को पहला, सोडा लाइन decarboxylation. ये पूरे का पूरा ग्रुप उड़ जाता था और इसकी जगह पे H लग जाता था. So sodium benzoate on heating with soda and lime produces the benzene. That will be another method of preparation. Although यहाँ पे लिखा गया है, बट फिर भी मैं अपने हाथ से लिखना चाहूंगा. जो नीचे वाला रिएक्शन था इसको बोलते हैं दोस्तों
benzene diazonium chloride. The benzene diazonium chloride. क्लास नोट्स में आप खुल के ऐसा लिख सकते हो. अगर आप उसके ऊपर वाटर डालते हो, थोड़ा सा वार्म करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यू अगेन गेट बेंजीन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बढ़िया बात है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द अदर थिंग. यू रिमेंबर, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये याद रखना है, और इसमें क्या डाला था ये दिमाग में रखना है. ना माइनर प्रोडक्ट ना इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, कोई स्कूल का टीचर ही ऐसे आ गया जिसने आपको तंग ही करना है, देन दे कैन डू दैट. अदरवाइज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं है. जिंक, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखते हैं. जहां पे भी उनको ऑक्सीजन दिखी नहीं, उसने ऑक्सीजन वहां से खींच लेनी है और बना देना है जिंक ऑक्साइड. यू कैन गेट बेंजीन आउट ऑफ दिस. क्योंकि बेंजीन बनाने के ज्यादा रास्ते नहीं है, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर द बेंजीन. बाकी once you see the NCERT questions, so then you become more clearer किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. You remember loss of halogen or loss of oxygen is called as reduction. Chlorobenzene, on being reduced with nickel aluminum NaOH, that is a reducing agent, we get बच्चों the benzene. और आप बेशक ऐसा लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. निकल एल्यूमिनियम NaOH, राइट. दिस इज रिडक्शन. क्या मिल जाएगा? बेंजीन. सिंपल ये रिएक्शन एक्सेप्टेड है, बट स्कूल में याद रखना पीएच नहीं लिखना है. तो स्कूल के लिए बड़ी जल्दी ये बताना बंद कर दूंगा. आपने C6H5Cl या ऊपर जो रिंग बना के लिखा गया था बेटे, वो लिखना है. नाउ डू यू रिमेंबर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन. पूरी वुड्स रिएक्शन में बेटिया RX लेता था, सोडियम लेता था, RX लेता था, ड्राई ईथर सॉल्वेंट डालता था, क्या हो जाता था? R मिल जाता था. ये NaX लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रेसिपिटेट कर जाता था. आई होप यू रिमेंबर. डिट्टो सिमिलरली वी हैव फिटिग रिएक्शन. फिटिग रिएक्शन में ये आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन रख सकते हैं. आप सोडियम डालिए और आपको सॉल्वेंट डालने से, इसका नाम क्या है बच्चों? डाइफिनाइल या बाइफिनाइल is going to be obtained. Do you understand? What's reaction? एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड यूज हुए थे. फिटिक रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड यूज हुए थे. एक महोदय और भी आए, एक साइंटिस्ट और भी आए, उन्होंने इन दोनों को उठा के मिला दिया और नाम रखा गया वुड्स फिटिग रिएक्शन. क्या हुआ सरदार साहब? इसमें RX सोडियम बेटे, और आपने ले लिया यहाँ पे ये, और सिंह साहब आपकी बात, आपको क्या मिल गया? R. This R can be anything बेटे. It can be methyl, it can be ethyl, and so on. That is the idea of telling on that page. The Woods Fittig reaction. You understand? The Woods Fittig reaction हमारे पास, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे लेके आना था बच्चों. तो I hope you understand. The Br will be replaced by इस वक्त R, and that product is going to be known as ethyl benzene. दोबारा देखो, वैसे लिख दो या ऐसे लिख दो, प्लस C2H5Br. कार्तिकेय, सोडियम
ether, you get the C6H5, C2H5. NaBr की कोई हमें चिंता नहीं है, आप लिखना चाहिए तो जरूर लिखिए, शुरू में लिखें तो इट विल बी बेटर, बट अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना एक वाइड फील्ड है कि हम इसकी चिंता नहीं करते। नाउ हाउ विल यू मेमोराइज ऑल दीज इक्वेशंस? क्या आपको लगता है कि आप इसको चल चल के याद करें तो आपको यहाँ इसको, जैसे हम संस्कृत के ऐसे अपने रटे थे या में भी कोई और ऐसे अपने रटे थे तो आपको याद रहेगा? नो, इनको पेशेंटली पढ़ो, अपने हाथ से लिखो और क्वेश्चंस करो। व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस, ये रिएक्शन अपने आप याद होंगे बेटे। देयर इज नो अदर शॉर्टकट। कंटिन्यू। बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H is known as sulfonic acid. On heated with steam, get converted to benzene. Do you understand better? Benzene सल्फोनिक एसिड, स्टीम डाल दो। स्टीम का मतलब ऑटोमेटिकली हीट तो है ही है। You will get this. The benzene is going to be liberated. हालांकि बेंजीन बनाने के जो सारे रास्ते मैं आपको बता रहा हूं, तो नॉर्मली हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से काफी अच्छी मिल जाती है, तो हम कोई ज्यादा इनकी लंबा चौड़ा चिंता नहीं करते हैं बेटे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इट विल बी एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हालांकि अभी जो आपको रिएक्शन करवा रहे हैं, जब आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो इसका 10th हिस्सा नहीं करेगा। सो दीज रिएक्शन विल बी डिस्कस्ड इन क्लास 12th और डिटेल में और खुल के आ जाएंगे। तो अभी थोड़े समय के बाद जब मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो इनका मैकेनिज्म भी करवाऊंगा। बेंजीन, राइट, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद RX, इधर देख, AlX3, दिस विल बी बच्चे कैटलिस्ट होगा और आपको मिल जाता है PHR, राइट। तो दैट इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यू अंडरस्टैंड वैसे? इनमें से जो सा मर्जी रिएक्शन देख लो, एक ही चीज है। So this is C2H5Br AlBr3 और हमें क्या मिल जाएगा? एक H हट जाएगा और उसकी जगह पे C2H5 is going to be obtained. To you, ठीक है, नई चीज है, मुश्किल तो होगी ही होगी, रिएक्शंस है, बट इतने भी इम्पॉसिबल नहीं है। और इनको सीखने के लिए सिर्फ रेपिटेशन लगता है, सिर्फ रेपिटेशन लगता है। Now a very less important reaction, please don't worry. जहां पे आपने पीछे Br रखा था, you can keep MgBr also, और R आपके पास ये वाला R आ जाएगा, R आपके पास ये R आ जाएगा। तो जैसा पीछे था वैसा ही ये आपके पास हो रहा है। Simply this molecule is known as Grignard reagent, phenyl magnesium reagent. Grignard reagent can be hydrolyzed, right, with water to form the benzene. Please do not memorize this reaction unless and until I write important. These are important and आपने कहां से ये किया हुआ है? Alkanes में आपको करवाया गया था। Aromatization, reforming, ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं बच्चों। Aromatization, you people are going to read it as a homework. कहाँ पे किया है डियर? ये आपने किया था एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अगर हम समरी बनाने की कोशिश करें बच्चों, फ्रॉम एल्काइंस पॉलीमराइजेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, फिनोल्स के ऊपर जिंक डाला गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर वाटर डाला गया, यहाँ पे वुड्स-फिटिक रिएक्शन एंड रिडक्शन करवाया गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RBr के साथ RX के साथ रिएक्ट करवाया गया,
राइट। दीज आर फ्यू मेथड्स जो हमने आपको ये करवाए, और एल्केन से आपने एरोमेटाइजेशन या रीफॉर्मिंग वाला रास्ता देखा। सो वंस यू कंप्लीट द होम, अपने होमवर्क कर लिया है, इसको कॉपी कर लिया, तो जितनी बार आप इसकी समरी बनाएंगे बच्चों, तो उतनी बार आप ज्यादा कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, expectedly you people are going to do it, but remember last point, they are highly toxic and cancer causing. तो आपने हर हाल में इनसे बहुत दूर रहना है। घर में जो फिनाइल देखी होगी, जिसको हम सफाई के काम में लाते हैं, डू नॉट टच इट स्ट्रिक्टली। टच इट, स्मेल इट, दूर रहो। केमिकल प्रॉपर्टीज, हम काफी इंपॉर्टेंट चीज में से निकलने वाले हैं। डू नॉट फॉरगेट, benzene and its derivative show electrophilic substitution reactions. लॉक किया जाए, ऐसा ही होगा। As we use, the horse will not eat flesh. The cow will not eat flesh. The tiger will not eat grass. So benzene and its derivative show electrophilic substitution reactions. This has to be kept in mind always. Always. Arenes, benzene, are expected to be quite reactive. However, it is found to be quite stable and does not undergo easily addition reactions. For example, everything important. Benzene does not react with bromine in carbon tetrachloride. Do you people remember? This was used as a test for alkenes or alkynes. It does not decolorize Bayer's reagent. Bayer's reagent alkene के ऊपर diols बना देते थे, तो that was used as a test. So benzene showed no reaction with bromine, carbon tetrachloride, or this. Why? Because benzenes are itself very stable. The reactant is extremely stable, so it does not react. However, benzene and other arenes undergo substitution reactions. Most important है, addition करवाऊंगा but कम होंगे। Oxidation reaction, हर organic compound जलता तो है ही है। You are going to read it, ये आपको करवा चुका हूं। Benzene is a burger-like molecule. It's a hexagonal planar molecule. It has sp2 hybridized carbon. It has one pi electronic cloud above and other below the plane of the hexagonal ring. Benzene को imagine करने के लिए एक burger को imagine करिए. It is an electron-rich molecule. Please do not forget it. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आ सकता है? नो, नॉट बाय न्यूक्लियोफाइल। इट्स इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर न्यूक्लियोफाइल तो आएगा ही नहीं। सो बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। डू यू पीपल रिमेंबर बच्चों, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, RCO positive, Br positive, Cl positive, and many more to come. NO2 plus. Yes, you read right. SO3 is also an electrophile. So these are easily attacked by electrophile. Addition reaction वो देते नहीं है। आपकी आंखों को जरा ये कैचअप करने के लिए रंग यूज कर रहा हूं। Benzene and its derivative show electrophilic substitution reaction. आपकी मर्जी है, आप इसको सिंपली ES बोल दीजिए, और आप इसको EAS कह दीजिए, where E is electrophilic, A is aromatic and S is the substitution. दोनों एक ही होगा। आप ज्यादातर EAS नहीं देखेंगे, आप उस जगह पे ES ही देखेंगे।
हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज में से निकलने वाले हैं बेटे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक बार सीखा और सारी जिंदगी के लिए सीखा रह गया तो गलत नहीं होगा। एक बार पढ़ लेते हैं फिर खुद करेंगे। हैलोजनेशन, हम क्या कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। The replacement of a hydrogen atom, in the ring of an arene benzene by a halogen atom is called as halogenation. The halogenation takes place in the presence of catalyst, Lewis acid, such as FeCl3 or AlCl3. याद रखना, Lewis acid हमेशा सूखे हुए होने चाहिए, एनहाइड्रस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इनको पानी मिला, इन्होंने पानी के साथ रिएक्ट कर जाना है और हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो which act as a halogen carrier. टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है। तो रिएक्शन 1, बेंजीन लीजिए, क्लोरीन डालिए, कैटलिस्ट डालिए, यहाँ पे AlCl3, एनहाइड्रस। आप ब्रोमीन लीजिए, आप कैटलिस्ट, वैसे तो AlCl3 भी डाल सकते हैं, एनहाइड्रस FeBr3 डालिए। इवन FeCl3 भी काम करेगा, ये कैटलिस्ट है। हमें यहाँ पे मिल जाएगा द क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरीन यूज किया और अगर ब्रोमीन यूज किया, आपको मिल जाएगा द ब्रोमोबेंजीन is going to be obtained, my dear friends. Right? That is the reaction. But इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस हमें इसको खुद करना चाहिए। हम आपको इस रिएक्शन के अंदर क्या ड्रामा हुआ है, आप FeCl3 डाल दीजिए और AlCl3 डाल दीजिए, एक ही बात होगा, एक हाइड्रोजन बाहर गया, उसकी जगह पे क्लोरीन आया। ये दिखाने जा रहे हैं कैसे हुआ। That is known as the mechanism. The first step, the Cl2 react with Lewis acid to form the electrophile. बेटे इसको बोलते हैं जनरल में हेलोनियम आयन। इस वक्त क्लोरीन है तो इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। Remember, this is an electrophile. This is an electrophile, right? आप चाहते तो आप यहाँ पे ब्रोमीन भी यूज कर सकते थे और आप FeBr3 भी यूज कर सकते थे, आप FeCl3 भी यूज कर सकते थे। You have no problem at all. This will be forming AlBr4 negative plus bromonium ion. ये ब्रोमोनियम आयन क्या चीज है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल है। So that is going to be, हम आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? The halogenation. तो पहले स्टेज में कार्तिकेय, what has been produced is the Cl positive ion area. What is that? Electrophile. Now the second step arrive. What happened? The ring will attract it. Why attract? क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है, रिएक्शन ने तो होना है। तो क्लोरीन जी आ पहुंचे हैं, क्लोरीन आ पहुंचे हैं, इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। अब इसके लिए यहाँ पे आपको ये डॉट डॉट दिखाने की जरूरत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं और वही इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। बेसिकली आपके पास हुआ क्या बच्चों? आपके पास यहाँ पे H भी लग गया है, यहाँ पे Cl भी लग गया है और यहाँ पे क्या चार्ज आ गया है? पॉजिटिव। आपने उसकी रेजोनेंस खराब कर दी, उसकी एरोमेटिसिटी खराब कर दी, बट दिस intermediate is stabilized by resonance. Stabilized by resonance. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस चलती है, राइट?
ये वाला इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया। अब ये वाला इधर आ गया, पॉजिटिव आ गया। यू अंडरस्टैंड? इंटरमीडिएट स्टेबलाइजेशन। नाउ तीनों में से जो सा मर्जी स्ट्रक्चर ले लीजिए, मैं पहले वाला ले रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल आया था, इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकालने का समय आ गया है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला और वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? इसको मिल गया। और आपके पास क्या चीज आ गई बच्चों? आपके पास आ गया यहाँ पे क्लोरीन, डबल बॉन्ड रिस्टोर हो गया। लास्ट स्टेज में आपने एक H+ पैदा किया और एक कैटलिस्ट को रीजनरेट करना है, ये बना के देगा HCl और AlCl3। I will write it, very important, स्कूल के सिलेबस में भी हो सकता है। The same thing happen with this, the same thing happens with this। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, पहले स्टेप में इट इज जनरेशन ऑफ क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अगर आया था तो उसने अटैक करना था बच्चों E+ के ऊपर। इधर ये सेकंड स्टेज आ गई। क्या हो गया था? इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव चार्ज। और तीसरी स्टेज में क्या हुआ था? स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंटरमीडिएट। ये ऊपर वाला इंटरमीडिएट कैसे? रेजोनेंस है। और चौथे स्टेप में क्या हुआ था? लॉस ऑफ H+। लॉस ऑफ H+ में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल गया था। क्या आ गया था? इलेक्ट्रोफाइल। ओ बच्चों, मैंने उसकी जगह पे Cl की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया। और पांचवे में री जनरेशन ऑफ व्हाट बेटे? कैटलिस्ट। दिस हैज हैपेंड। कुछ कारण है, इसको मैंने जरा आगे के लिए डुप्लीकेट कर लिया। कुछ कारण है, इसको भी आगे ले जाता हूं। That is what we have done. So what is the Lewis acid catalyst doing here? उसने किया क्या था? The role of Lewis acid AlCl3, FeCl3, FeBr3 is to produce electrophile and carry halogen to hydrocarbons. Therefore, the catalysts are also known as the halogen carrier. Remember, बेंजीन एडिशन नहीं शो करती है। बेंजीन कहता है मैं H+ लूज कर दूंगा तो मुझे H+ की जगह पे कोई और पॉजिटिव चीज दे दीजिए। That is what is happening. इलेक्ट्रोफाइल चेंज होंगे, मैकेनिज्म चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग आते रहेंगे। So he says reaction with iodine is reversible because Hi form reduced iodo derivative back to benzene. Therefore, to destroy Hi, we add oxidizing agent similar to what we did in alkanes. What will happen? The Hi will be destroyed, and if it is destroyed, ली-शेटलर प्रिंसिपल आपने कुछ कारण की वजह से इक्विलिब्रियम बाद में किया है। ली-शेटलर प्रिंसिपल अगला चैप्टर वही आएगा, इसको आगे की तरफ भेजता है। The reaction moves in फॉरवर्ड रिएक्शन में, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करे। We do not want product should react with product, and also as a chemist we do not want either of the reactant react with product. ऐसा करने से मेरा रिएक्शन सही डायरेक्शन में नहीं जाता है।
Like alkanes, fluorination is unadvisable. It is going to lead to explosion will happen. Explosion will happen. Important. It may be noted that during electrophilic substitution reaction, अगर excess of electrophilic reagent, what chlorine is used. अगर excess of chlorine is used, bromine is used, iodine is used, further substitution may occur in which all the atoms of hydrogen may be successively replaced by electrophile. For example, if you have C6H6, you react with excess of chlorine, right? और इसमें भी catalyst तो चाहिए ही चाहिए. C6Cl6 will be obtained, right? C6Cl6 will be obtained. This is a hexachlorobenzene बोला जाता है. Remember, this is electrophilic substitution reaction हुआ है. पीछे हमने एक हाइड्रोजन चेंज किया था, यहाँ पे हमने सारे के सारे हाइड्रोजन पलट मारे हैं. Do you understand what has happened? How it has happened? Now, बच्चों, so I taught you this happened. अब बेसिकली क्या होगा कि आप जोन सा मर्जी इलेक्ट्रोफाइल ले आइए, the reaction will be the same. The reaction will be the same. For example, अगर आपके पास बेंजीन है, आप RCl ले आते हैं, ठीक. फ्रिडल क्राफ्ट मैंने कहा था अभी रिएक्शन करवाता हूं. आपने AlCl3 डाला है तो हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएगा R. यहाँ पे क्या होगा बेटे? AlCl3 react with RCl to form AlCl4 negative and R plus. What is this? Electrophile होगा. Do you understand? And once electrophile होगा बच्चों, right, we are going to have this reaction. बिल्कुल सेम. पिछली बार इलेक्ट्रोफाइल हैलोजन डाला था, इस बार इलेक्ट्रोफाइल क्या डाल दीजिए आप? द R प्लस डाल दीजिए. दैट इज हम कॉलिंग अबाउट फ्रिडल. वैसे आदत डालो, FC लिख सकता था. फ्रिडल क्राफ्ट क्या नाम था बच्चों? एल्काइलेशन. जैन समझ आया तुम्हें? अगर आपके पास बेंजीन था गुड़िया, आपने C2H5Cl लिया, AlCl3 डाला, तो इन दोनों के रिएक्शन से गुड़िया तेरे को क्या मिलेगा? C2H5 पॉजिटिव. और हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग जाएगा? C2H5. दिस रिएक्शन इज बेटे क्या बोला जाता है इसको? FC alkylation. Friedel Crafts alkylation. Ditto similarly, one more reaction आगे नहीं करवाऊंगा, आने वाला है वो भी. Friedel Crafts acylation है. Friedel Crafts acylation में बेंजीन लीजिए, RCOX डालिए, X can be chlorobromo, AlCl3 डालिए, आपको बेंजीन की जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे COR ग्रुप लग जाएगा. अब कैसे होगा? RCOCl प्लस AlCl3, हाँ गुड़िया, AlCl4 नेगेटिव और RCO पॉजिटिव. ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है. फॉर एग्जाम्पल, आप बेंजीन लीजिए, देखो सब में वही चीज रिपीट हो रही है. इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? This molecule is known as acetophenone. Acetophenone is obtained, and you get ditto same reaction here. यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था? RCO पॉजिटिव.
इसका नाम होता है एसाइल ईएम आयन। दिस इज कौन सा रिएक्शन था? रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सी, एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था? R प्लस, और एसाइलेशन में इलेक्ट्रॉन कौन सा था बच्चों? RCO प्लस। एक सेकेंड रुकिएगा। तो जस्ट गिव मी टाइम, थोड़ा सा, एक मिनट, आई नीड स्पेस, सो सॉरी। Yes, you understand? See what I am going to do now. Similarly, this reaction is known as nitration. Nitration में बेंजीन लीजिए, नाइट्रिक एसिड लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, और आपको मिल जाएगा द नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर। बेटा पार्टी, इसको बोला जाता है, इस मिक्सचर को बोला जाता है nitrating mixture. What happens here? This is nitric acid. Sulfuric acid, from sulfuric acid प्रोटॉन आता है। प्रोटॉन आके पूछते रहो तो यहाँ पे ये बन जाता है। नाउ ऑक्सीजन गुस्से में है, मेरे से इसने पॉजिटिव चार्ज करवा दिया। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले लेता है, और बलविंदर सिंह, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आ गया बेटे? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन। ओए, तू कहां से बोल गया? तो इसको रिकॉर्डिंग जरूर देखना गुड़िया, है ना? तो यस सर। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है पुत्र, और वो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों ये वाला दोबारा रिएक्शन हो जाए। सब में वही चीज चल रही है। तो नाइट्रेशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? NO2 प्लस। बाकी सारी कहानी वैसे की वैसी चल रही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ बेटे। तो अभी करवाता हूं सल्फोनेशन में द इलेक्ट्रोफाइल इज SO3। अभी करवाता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड SO3, और कभी कभी इसकी जगह पे लिखा जा सकता है बेटे H2S2O7, ये क्या होता है? ओलियम। H2SO4 प्लस SO3 को ओलियम भी बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो अगर आप ओलियम यूज करें तो आपको क्या मिल सकता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड। अब तुम बताओ, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? बोलो बलविंदर, कोई बात नहीं, खड़का होगा, होने दे, बोल दे। NO2 NO2 प्लस। इसका नाम बोल सरदार। सर नाइट्रोनियम आयन। और सुनो, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, यही क्वेश्चन है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। पहले रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? सर CH3 पॉजिटिव। CH3 होगा सर। CH3 पॉजिटिव बोलेगा गुड़िया। इसका नाम क्या है? Okay. मीथाइल कार्बोकेटायन। दूसरे में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? सर इथाइल कार्बोकेटाइन। C2H5 प्लस। इथाइल कार्बोकेटायन। ये सारे के सारे यही हैं। तुम बताओ, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में राइट इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? COCH3। ना, ऐसा बोल, CH3CO प्लस। ओके सर। इसका नाम है गुड़िया, ये तेरे को नहीं आता था, एसिटाइलियम आयन।
पॉजिटिव चीजें जितने भी होते हैं ना, अमोनियम, हाइड्रोनियम, ईएम लग जाता है। और बेशक आप एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करें, अभी भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, CH3CO+। CH3CO plus. यहाँ पे ये था ना नेगेटिव, उसने H+ से पकड़ के HBr बना दिया। ओ, यहाँ पे HCl आना चाहिए था। और यहाँ पे आपके पास सरदार CH3CO नेगेटिव होगा बेटे, और इधर आपके पास क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। एक मिनट, इसके ऊपर पॉजिटिव बेटे, इसके ऊपर नेगेटिव। तो वहां पे Cl नेगेटिव था, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, द एसिटिक एसिड इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड। मोटे तौर पे तुम्हें एक ही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बेंजीन के ऊपर H+ बाहर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और क्या बैठ जाएगा इसकी जगह पे। रिएक्शन का नाम क्या पुत्रों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिपीट करते हैं जो भी आपको करवाया। ये डन इट, ध्यान से देखो। X2 कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन। तो अगर आपने X2 डाला, AlX4 नेगेटिव, X+ मिल गया। ये आ गया जनरल, क्लोरीन था, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमीन था, ब्रोमोनियम आयन। और बेशक AlBr3 यूज करो, FeBr3 यूज करो, एक ही है। ये सारे के सारे लुईस एसिड हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते थे। बच्चों रिपीट कर रहा हूं, वही पुरानी चीज दिखा रहा हूं, कोई नई चीज नहीं करवा रहा हूं। आपको याद है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था, वो इधर चला गया था, नुकसान इसका हुआ था। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये स्लो है। उसके बाद एरिनियम आयन बेंजीन से जो बना है, गेट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। नाउ स्टेप मैंने 4 बनाए थे, उन्होंने 3 बना लिए, बात एक ही है, वो मैं ज्यादा छोटे कर गया था, इन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं। द रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट। ठाकुर कितने स्टेप हुए गुड़िया, गिनती मत कर। पहले स्टेप में क्या बना, द आपके पास जनरेशन, ये मैंने गलत लिख दिया है, अभी ठीक कर देता हूँ, रीजनरेशन नहीं होना चाहिए था, इट इज बिटिया Generation of E plus. आफ्टर, ये जनरेशन होना चाहिए था, है ना। अब ठीक है, सो दैट इज जनरेशन ऑफ E+, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, लॉस ऑफ H+, और क्या होगा बेटिया, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट होगा। पेज नंबर 72 याद रखना, यही तो मैं तुम्हें करवा रहा था, है ना। ये जनरल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल बदलेगा, रिएक्शन का नाम बनेगा। X ने किया तो मिस्टर X रिएक्शन, Y ने किया तो मिस Y रिएक्शन, ऐसे आ जाएगा, बट नाम आगे आगे लगता रहेगा। दैट इज द सेम थिंग, दो अभी भी कराया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड्स विद द हेल्प ऑफ ये सब कुछ आपको मैंने अभी अभी करवाया, वो वही चीज है बेटे, बस वो बुकिश नॉलेज के तरीके से आपसे रीड करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो समझ आता रहे। रेट डिटरमिनिंग स्टेप, न्यूक्लियोफाइल, वो जो मैंने आपको लिख के दिया था, ये सारे का सारा बिल्कुल वही चल रहा है। तो रेपिटेशन हो रहा है, अगर एक कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लेंगे। तो नाइट्रेशन के दौरान इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आता था बच्चों, मैं भूल गया, NO2. माता NO2 plus nitronium ion. ये न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, Electrophile है sir. ये चीज आपको करवा चुका हूँ। वहां पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल Cl रखा था, आप यहाँ पे NO2 रख दिए, सब कुछ सेम हो रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। सल्फोनेशन, H2SO4 dissociate to form H3SO,
H3O positive, HSO4 negative, SO3 that is going to be an electrophile. ये मैं करवाता हूँ बच्चे, है ना, ये मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको ये कैसे हुआ। तो सल्फोनेशन के दौरान जी बेटा यही वाला मैकेनिज्म खुद कर रहे हैं, ठीक, खुद कर रहे हैं। तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड टूट गए HSO4 नेगेटिव प्लस SO3 मिल गया, वो ऊपर नेगेटिव गलत लगा दिया। SO3 में सल्फर के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल है। देखो जी, आंखें बोर्ड पे, H सल्फर ट्राइऑक्साइड, yes I know what I'm doing। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको चला गया, इसको चला गया। समझ आया कार्तिक है? अब की बार बेटे तुम्हारे पास H लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, SO3 नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। नाउ बच्चे व्हाट विल हैपन, माइनस H प्लस, मैंने काट दिया है माइनस H प्लस क्योंकि मैंने SO3 को दे देना है। नाउ व्हाट हैपन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, इसको मिल गया, तो क्या आ गया पूरी दीदी, यहाँ पे दोबारा बॉन्ड बन गया ना बेटिया, ऐसा। ऊपर क्या मिला था, SO3 नेगेटिव, उसने प्रोटॉन जो आपने निकाला था पकड़ लिया। क्या बन गया सरदार साहब, नाम बता, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेटे इसके दौरान, सल्फोनेशन के दौरान इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, SO3। SO3 ये मैं करवा चुका हूं आपको, ठीक है जी, वहां से देख लेना, यहां से देख लेना, कहानी एक ही है। क्लोरीनेशन बहुत बार होगी, छोड़ दो ना। क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल है Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव। यस फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था बच्चों, सर, कार्बोकेटाइन। शाबाश बेटा, सरदार साहब मेरे साथ करेगा तो ओपन फॉर ऑल, तो मदद करिएगा, ठीक है, कहीं पे गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेना, लॉजिक लगाएंगे पुत्र। सिंह साहब इस रिएक्शन का नाम क्या है, सर, फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइनेशन। वेरी गुड पुत्र। तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल क्या आया, सर, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। CH3 CH2 CH2 plus कार्बोकेटाइन में क्या सिखाया था, सर, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री है, तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगी सिंह, तो तुम्हारे पास तृप्ति यहाँ पे डली कार्बोकेटाइन में। तो अब गुड़िया यहाँ पे आपके पास कहीं पे भी लगा दे बेटे, 6 पोजीशन में है ना जन, क्या मिल जाएगा, yes sir सिद्धार्थ को समझ आया बच्चा, अगर तूने नहीं ध्यान किया राजा, यस सर। तुमने पॉजिटिव चार्ज इससे अटैक करवा के आपने क्या बना देना था, CH2 CH2 CH3, जो कि बच्चे बनती नहीं है। Sync, you people will do as a homework again, got it। दोबारा देखो, चलो जी,
ये देखो ये गहराइयां हैं। अब बेटा पार्टी Br हटा दो, कौन सा? 1 degree height. क्या करूं, हाइड्राइड करूं कि मिथाइल करूं? तो मिथाइल। मिथाइल करेंगे सर यहाँ। क्यों पुत्र? क्यों? अगर मैंने हाइड्राइड की, सरदार ये कौन सा था तृप्ति? सर ये 1 to हाइड्राइड शिफ्ट है। अच्छा चल, अब व्हाइट पेन से ना मिथाइल को शिफ्ट करता हूँ पहला, हाँ? यस सर। अगर मिथाइल को शिफ्ट किया तो तेरे पास ये बनेगा। ये 2 डिग्री है बच्चों और ये 3 डिग्री है। केड़े वाला ज्यादा स्टेबल है? सर 3 3 डिग्री। डिग्री वाला। तो कौन सा करेगा बेटिया? सर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। हाइड्राइड शिफ्ट। समझ आ गया? अब इसके ऊपर बेंजीन आएगी, तो अगर बेंजीन आएगी भाई, आई विल बी द हैप्पीएस्ट टीचर, कोई मुझे इसका कॉमन नेम बता दे। आई पैक तो मैं बताता, 2 मिथाइल 2 फिनाइल, अल्फाबेटिकली सेट कर लेना, प्रोपेन। हाँ भाई, tertiary butyl benzene. You should complete as a homework. पता क्या होता है, जहां पे आपका कैरियर बनना है, समझ आने वाली चीज है, वहां पे वो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा कि आपको बीच के स्टेप्स पता है कि नहीं। कीपिंग इन माइंड, राइट, कीपिंग इन माइंड कार्बोकेटाइन शो रीअरेंजमेंट। तो अभी भी देखो अल्कोहल भी यूज किया जा सकता है। तुम्हें याद है ना, जब तुम यहाँ पे एसिड डालोगे तो क्या मिल जाएगा? ये आपका नीट और जेई का पूछा गया क्वेश्चन है जैन। इधर से जैन तेरे पास क्या आ गया? कार्बोकेटाइन, है ना गुड़िया? और क्या मिल? इथाइल बेंजीन। मतलब कहना चाह रहा है दैट इज यूज C2H5Cl प्लस AlCl3, या गुड़िया प्लस एसिड, दोनों से बहना तेरे को क्या मिलेगा? इथाइल आयन। और दोनों को क्या बोला जाएगा? फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तुम अपने हाथ से बनाओगे। हाँ जी, ये मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, करवा भी रहा हूं। अगर ये है तो आपको H+ के डालने से क्या मिल जाएगा? ये याद करो, एल्कीन के ऊपर एसिड के डालने से क्या होता था? द मार्कोनिक ऑफ एडिशन होती थी। दिस द कार्बोकेटाइन। और आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आइसो प्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यू शुड डू इट और रिपीट करना बेटे इसके ऊपर। ये आपका जेई उसका नीट का पूछा गया क्वेश्चन है, कोई बता सकता है? वही क्वेश्चन। हाँ बेटिया, जब H+ डालेगा तो क्या मिलेगा? कार्बोकेटाइन। ये और क्या सिखाया था? रिंग के ऊपर H हटा दो, है ना, और H की जगह पे क्या टांग दो? ये वाला Another benzene.
ये बेंजीन है कि साइक्लोहेक्साइल है? सर ये साइक्लोहेक्साइल है। साइक्लोहेक्साइल है सर ये। ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटे। ये सारे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, सारे के सारे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। सर ये डाइफिनाइल बनेगा फिर? चले, डाइफिनाइल च ए होंदा है शेर खान। ओके सर, यस सर। है ना, ये साइक्लोहेक्साइल है बेटा। डाइफिनाइल में पीएच होता है, पीएच C6H5, ये C6H11 है। सिंह साहब, यू विल रीड इट, आई हैव डन इट बेटे। तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन चल रहा है बेटे। नाउ वी आर मूविंग, थोड़ा सा जायका चेंज कर रहे हैं। अभी तक हम आपको क्या दिखा रहे थे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नाउ हम आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हम थोड़ा सा फर्क करने वाले हैं। बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस सीरीज, एक सेकंड बेटे। Benzene and its homologous also show some addition reaction. However, reaction मुश्किल होते हैं क्योंकि बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो दिस इज C6H6। अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, वी गेट सिंह, ये साइक्लोहेक्सेन है बेटे, है ना, 12 और 6 यस बेंजीन। सर। पिछले रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? दिस इज एडिशन, ध्यान से देखो, दिस इज एडिशन। पिछले रिएक्शंस में मैं एक हाइड्रोजन को लेता था और उसकी जगह पे क्या डाल देता था? इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज कौन सा रिएक्शन था? इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हैलोजन लें, क्लोरीन डालें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज C6H6, this is C6H6Cl6, right? This is कौन सा रिएक्शन है बेटे? एडिशन रिएक्शन। पिछले वाले में 6 हाइड्रोजन आए थे, C6H6, राइट? ऐसा लिखा नहीं जाता तो हमने इसको क्या कर दिया था, ये यहाँ पे आपके पास Cl6 आ गए। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं बच्चों बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको बोलते हैं गैमेक्सीन, इसको बोलते हैं लिंडेन, और इसको बोलते हैं 666। 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन। This is important because benzene hexachloride is an insecticide, कीड़े मारने के काम में आता है। दोबारा देखो, दोबारा देखो, बेंजीन लिया, क्लोरीन लिया, एक्सेस में लिया, राइट? FeCl3 डाला, Cl 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 C6Cl6 हेक्सा क्लोरो, क्या बोला? बेंजीन, राइटो। बेंजीन लिया, क्लोरीन लिया, राइट, और सनलाइट यूज किया, आपको मिल गया। सफेद और काले में फर्क महसूस करो, उसमें 3 डबल बॉन्ड थे, इसमें 3 डबल बॉन्ड नहीं है। C6H6Cl6,
नाम क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC। ये वाला रिएक्शन कौन सा बेटे? एडिशन। एडिशन रिएक्शन। और चिट्टे वाला कौन सा पुत्र? सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्लीज नोटिस द डिफरेंस बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या स्ट्रेस करना चाह रहा था। चल सकता हूं आगे? दोनों में यस सर। ऑक्सीडेशन। हर कंपाउंड, हर हाइड्रोकार्बन जलता है और जल के क्या पैदा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा करता है। सुनने वाली बात, जो बेंजीन है ये कार्बन रिच कंपाउंड है। देखो ना, 72 ग्राम में से 78 ग्राम में से 72 ग्राम पर मोल आपके पास कार्बन है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। जब ये जलता है तो ये सूटी सुना हुआ है? सूटी फ्लेम से जलता है। जैसे आपने धूप और अगरबत्ती देखी है, जब धूप और अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से काला धुआं निकलता है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान है। दे बर्न विद अ सूटी फ्लेम, राइट बेटे? एंड ऑक्सीडेशन of benzene. Benzene on oxidation in the presence of vanadium pentoxide. मैंने तुम्हें पूरे सिलेबस में रटने के लिए ज्यादा नहीं बोला, कभी नहीं बोला होगा। CTM का मतलब commit to memory. Benzene on reaction with V2O5 form malic acid, which form malic anhydride. This is also going to be one important reaction of benzene. Right, bachcho? Oxidation reaction with hot acidic KMnO4 or nitric acid or potassium dichromate, sodium dichromate. The side chain is oxidized to carboxylic acid. Notice ये, right? यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन थे? एक कार्बन वाला एसिड। यहाँ पे कितने कार्बन थे? 2, तो भी एक कार्बन वाला एसिड कार्बन बेंजोइक एसिड बनने वाला है। दोबारा देखो पूरी, एक कार्बन वाला एसिड। अगर एक से ज्यादा लगे हो तो एक कार्बन। समझ पा रहा है बेटिया? इररिस्पेक्टिव ऑफ ऊपर जोन सा मर्जी आर ग्रुप लगा हो, वो नाइट्रिक एसिड KMnO4 या किसी के साथ भी ऑक्सीडाइज हो के डॉली किस पे जा रहा है? द बेंजोइक एसिड पे जा रहा है। दैट इज बेटिया व्हाट आई एम टेलिंग यू। आर, ठीक? ये आर में एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 50 कार्बन हो, ये सिर्फ किस में जाएगा बेटे? बेंजोइक एसिड। COH। और अगर आपके पास एक से ज्यादा आर ग्रुप लगे हुए, मैं जानबूझ के फर्क कर रहा हूं, CH2 CH3, ये भी किस में उड़ जाएगा? COH में उड़। समझा? ये कह रहा था बेटा। दिस रिएक्शन इज, जहां पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है ना, तो सच में उसको वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकियों को मैं कह रहा हूं रीड कर लो, क्वेश्चन पे जाओगे तो समझोगे, तो याद रहेगा। विद एसिडिक MnO2 or chromyl chloride, the side chain is oxidized to aldehyde group. The name of the reaction is ETARD reaction. ETARD, MnO2 इसलिए H+ और CrO2 Cl2 डाल दो,
वहां पे बेंजोइक एसिड बना था, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनेगा। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज, बच्चों भूलने वाला नहीं है, दैट इज ईटार्ट रिएक्शन। ईटार्ट रिएक्शन। नोटिस CH3, notice KMnO4, notice COH. Do you understand? And notice MnO2 or chromyl chloride, or notice CHO. I hope you understand what I want to tell you. Is it clear? You do not, अभी समझ नहीं आएगा कि reactions बहुत ज्यादा हो गए हैं। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये तो रिवाइज करना ही है, इसके तो नोट्स बनाने ही बनाने हैं। दूसरा, आपने GOC में से अगली क्लास के लिए रेजोनेंस +M +R -M और -R पढ़ के आना है। दिस इज मस्ट डू इट, मस्ट डू इट, करना है, ओके हर हाल में करना है। तो याद रखना, बिकॉज वंस यू डू इट, तो मैं इसको इसके सेकंड पोर्शन में ले जाऊंगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कहीं पे रेजोनेंस में कराया था, बट आई वांट यू पीपल टू रीड इट, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे जाएंगे, ऑर्थो पैरा, मेटा डायरेक्टर, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एंड सबसे मजेदार चीज क्या है कि ये एज सच आपकी +2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिए चल जानी है, एज सच चले जानी है। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये जरूरी करना है। देन आई हैव एडेड ऑल द NCERT हियर, राइट? जो भी NCERT के क्वेश्चंस है वो डाले हैं। दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी के लिए आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो करना जरूरी होगा बच्चों, यू मस्ट डू इट। तो we started with benzene. We discussed its method of preparation. We discussed red, thoda sa physical property, and we taught you benzene majorly electrophilic substitution reaction and minor addition reaction show करता है। आप रेजोनेंस को अगर पढ़ के आएंगे तो अगला टॉपिक आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, and that must be done, my dear friends. So we will stop here and we'll continue from this in the next class. Jai Hind, bachcho. Good luck.